أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورة فاتح کی درخواست کی سید اشتیاق حسین رضوی ولد سید مختار حسین رضوی سیدہ ام البنین عابدی بنت سید نور الحسن عابدی کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی سورہ حل عطا یہ چند سورے ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں قریب قریب ہیں اور سب آل محمد کی شان میں نازل ہیں. سورہ مزمل سورہ مدثر اور سورہ حل عطا یا سورہ دہر بیچ میں سورہ قیامہ ہے. یہ ساتھ ساتھ ہیں سورہ. ان سورتوں میں فضائل آل محمد ہیں. سورہ مزمل سورہ مدثر دونوں کا ترجمہ مفسرین نے مترجمین نے شیعہ سنی علماء نے اردو میں کیا ہے کالی کملی والے. اور پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جہاں ہر جمعے کی صبح میں جب مسجدوں کی میناروں سے آوازیں بلند ہوتی ہیں نعت کی تو ایک ہی نعت پڑھی جاتی ہے اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. تو اس سے پہلے کہ سورہ حل عطا کو پیش کروں دو جملے سن لیجئے. تو ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایہا المزمل. مزمل نہیں ہے مزمل. زے پہ بھی تشدید ہے میم پہ بھی.
और दूसरी जगह फरमा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम व अंज़िर व रब्बक फकब्बिर। तफसील में नहीं जाऊंगा। तो दोनों काली कमली वाले, काली चादर वाले, तो फर्क क्या है? जब मुज़म्मिल भी काली चादर वाला, मुद्दस्सिर भी काली चादर वाला, तो फर्क क्या है? मुद्दस्सिर जहां चादर में अकेला हो और मुज़म्मिल जहां चादर में और भी हो। अगर औरों का पता ना हो तो हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं चादर में कौन कौन है। और अगर ना मानो तो अपनी मोतबर किताबों में देख लेना। पैगंबर ने काली चादर उड़ा के फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत, जो चादर तले हैं वो हैं मेरे अहले बैत। यही मेरे खास भी हैं, यही मेरे आम भी हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जबकि होता ये नहीं है दुनिया में। सारा मजमा नहीं है, कुछ लोग हैं। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, नाना कहते हैं मेरा खून, मेरे बच्चों का खून। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बाप का खून बेटे का खून, बाप का खून बेटी का खून। दुनिया का उसूल यही है, मेरे बच्चों का खून मेरा नहीं, मेरा खून उनका खून। नहीं है मजमा, सारा मजमा। 12 बज गए। ये मिंबर जितने बनाए गए हैं ना, वो मेरे लिए नहीं बनाए गए। मुझे एक पायदान छोड़ के पांव रखना पड़ता है। अब बैठने वाले को ही पता होता है, तो एक कभी मुझे से भी आदमी का ख्याल रख लिया कीजिए ताकि बैठने में आसानी हो। आराम से बैठता तो आदमी आराम से पढ़ता है, लंबा कद बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इंसान के लिए। तो जाने गिरामी मैं यकीन माने जैसे बैठा हूं मुझे पता है कि उसमें पढ़ रहा हूं। तो साथ रहिएगा। रात के 12:15 बजे मैं अगर खून जिगर दे रहा हूं तो मोहब्बत से सुनिएगा। अच्छा जाने गिरामी, बाप का खून बेटे का खून, बाप का खून बेटी का खून, दादा का खून पोते का खून, नाना का खून नवासे का खून। लेकिन ये हम पहले शख्स की हस्ती को देख रहे हैं जो खुद फरमा रहे हैं, जिनके लिए अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये हवाए नफ्स से कलाम नहीं करते। जब तक के वही नाजिल ना हो जाए ये बोलते नहीं है। वो फरमा रहे हैं इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून। तवज्जो भाई, रसूल खुदा जैसा ना कहे मेरा खून इनका नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। पैगंबर ये फरमा रहे हैं जिसने इनका खून बहाया उसने मेरा खून बहाया। तवज्जो भाई, गले में दम नहीं है। हबीबे खुदा फरमा रहे इनका खून मेरा खून, जो इनका खून बहाए उसने मेरा खून बहाया। जिसने मेरा खून बहाया वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदर 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 हैदर। जीते रहे। तवज्जो फरमा रहे जान के। तवज्जो फरमा रहे। जैसे गुलाबी हो नहीं सकता, ऐसे ही अली वाला शराबी हो नहीं सकता। और मोहम्मद ने ये फरमाया मेरी औलाद का दुश्मन मेरा दुश्मन है, वो मेरा सहाबी हो। तवज्जो फरमा रहे जाने के।
और फरमा रहे जाने गिरा। तब सरवरे कायनात ने चादर उड़ा के बता दिया, चादर उड़ा के। मुझे सूरह हलाता मैंने ले ली है, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे मुकम्मल करूंगा वक्त के अंदर अंदर, जहां तक पेश करूं तो मेरे साथ साथ रहिएगा। सरवरे कायनात ने काले रंग की चादर उड़ा के फरमाया, काले रंग की। किस रंग की? जोर से बोलिएगा। काली चादर उड़ा के, काली। पैगंबर काली चादर ओढ़े तो सुन्नत, शिया काले कपड़े पहने तो बिदअत। तवज्जो फरमा रहे हैं? अभी आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तब सरवर का तमाम ने यही लिखा ना, ये अली रजा रिजवी नहीं कह रहा, ये तो तमाम मेंबरों से कहा जा रहा है, तमाम मस्जिदों से कहा, ए काली कमली वाले तुझ पे लाखों सलाम। नाम लिए बगैर कह रहा हूं, पाकिस्तान में एक मोहल्ले में, नॉर्थ में, शुमाली इलाका या निकल गया मुझसे नाम, मैंने नाम फिर भी नहीं लिया शहर का। तो एक इलाके के अंदर किसी ने हुकूमत बना ली थी, उसने कहा जो काले मामे के अलावा पहने का ना उसे मैं कोड़े लगवाऊंगा। उनसे पूछा ये क्या बात? तो उन्होंने कहा रसूल खुदा काला मामा पहनते थे, काला मामा सुन्नत है, बाकी सब बिदअत। तवज्जो तवज्जो, मैंने नाम नहीं लिया, परेशान क्यों होगा? तो फौज ने जो कुछ किया मुझे नहीं मालूम है। तो उसके बाद तो उन्होंने कभी काला मामा, तो उनसे कहा भाई आप शियों के खिलाफ हमने इतने फतवे लगाए। उन्होंने कहा नहीं, तारीख में यही लिखा पैगंबर काला अमामा लेते थे, काली अबा, और पैगंबर ने काली ही अबा पहनी है, काली ही अबा उड़ाई है। ताकि मैं ये कह रहा हूं, ताकि बिदअत के फतवे लगाने वाले या नात ना पढ़े या फतवे ना लगाए। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, चलते रहिएगा। सरवर कायनात ने काले रंग की चादर उड़ाई और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगारा ये हैं मेरे अहले बैत। मैं बहुत सोचता था कि ये अल्लाह के हबीब ने काली ही चादर क्यों उड़ाई, तो अचानक मेरी निगाहों में खाना काबा आ गया कि अल्लाह ने खाना काबा को काला खिलाफ उड़ा रखा। जब इंशाअल्लाह आप हज या उम्रे पे जाएंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने लिख रखा है मक्के के हरम की हुदूद शुरू हो गए। कई किलोमीटर पहले से हुदूद शुरू हो जाती हैं, अब काफिर नहीं आ सकता। तवज्जो, अल्लाह के हरम काफिर नहीं जा सकता, हुसैन के हरम मुनाफिक नहीं आ सकता। मोहब्बतों का ममनून हो, मोहब्बतों का ममनून। आप सलामत रहे, आप जी बीबी आपको सलामत रखे। भाई आप जिस मोहब्बत से मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कर रहे हैं, मुझसे पढ़वा रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं रात के 12 बजे पढ़ने की। आप सलामत रहे, आप जी हैं। गिरामी जनाबे सरवर, मैं सोचता था काली चादर पड़े तो खाना काबा नजर आया, तो वहां पे ना हुदूद है, यहां से आगे से मक्के की हुदूद शुरू, काफिर यहां से आगे ना बढ़े। तो अब काफिर इंजीनियर उन्होंने हायर किए, जर्मनी के, बरतानिया के, अमेरिका के। तो उन्होंने कहा भी आपने हमें हायर किया मक्के की बिल्डिंगें बनाने के लिए, और यहां लाके बता रहे हम अंदर नहीं जा सकते। का तुम बाहर से बताओ, अंदर हम खुद काम कर लेंगे। जुमला में अचानक अता हुआ पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा आप यहां सब रुक जाएं, हमें बताओगे आगे हम काम करेंगे। तो कहा जब फिर हम अंदर जा नहीं सकते, बाहर बैठ के बताएंगे तो खुद ही कर लेते। कहा हमें आता नहीं। अब पता चला चाहे काफिर हो मुनाफिक, वसीले को मानता। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मानता है। चाहे बिदअत के फतवे लगाता रहे, चाहे कहता रहे तवस्सुल शिर्क है, वसीला शिर्क है। जब आले मोहम्मद से वसीला शिर्क है, तो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी के इंजीनियरों से वसीला कैसे शिर्क नहीं? पता नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच रहे, पहुंच रहे। तो ऐज़ान गिरामी वहां पे कभी आगे मक्के की हुदूद है, अच्छा फिर पहुंचे कहते अब हरम की हुदूद। तवज्जो, यहां से हरम की हुदूद है, मस्जिदुल हराम की हुदूद है। मस्जिदुल हराम यानी हुर्मत वाली मस्जिद,
यहां किसी भी नापाक हालत में आना हराम है, गुजरना हराम। उसके बाद कह देते भाई ये सारा हराम, तो फर्क क्या है फिर? मैंने बहुत सोचा फर्क क्या, ये सारा हरम है, तो अल्लाह ने क्या किया, काला खिलाफ उड़ा के बता दिया ये सारा हरम है और ये है बैत। सारा मजमा नहीं है, अल्लाह ने फर्क बताया, हरम और है, बैत और है। पैगंबर ने काली चादर उड़ा के बताया हरम और है, अहले बैत और है। अब मेरी बात मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, पढ़ता रहूंगा जहां तक आप सुनते रहेंगे। तो जाने के रामी अब ये हैं अहले बैत रसूल, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने काली चादर उठाई है और बता दिया। और वहां पे बड़ा मशहूर जुमला है ना, एक उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका बड़ा मशहूर जुमला है, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है कि बीबी ने एक मर्तबा देखा ना कि पंजतन साथ साथ बैठे, रसूल खुदा ने चादर उठा रखी है, आप दाएं तरफ मौला अली हैं, बाएं तरफ जनाब सईदा, सामने इमाम हसन इमाम हुसैन। जनाब उम्मे सलमा ने एक मर्तबा देखा, कहा अताज़ुन ली या रसूल अल्लाह, इजाजत है मैं भी चादर तले आ जाऊं? तो सरवर कायनात ने एक मर्तबा देखा, कहा अंती अलल खैर, ए उम्मे सलमा आप खैर पे हैं, चादर तले नहीं आ सकते। मैं आपकी जबान में समझा दूं, आप रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, ये अलैहिमुस्सलाम है, रज़ी अल्लाह और है, अलैहिमुस्सलाम और है। नारा हैदरी। वजाहत में एक और जुमला कह दूं या आगे बढ़ सकता हूं? बात वाज़े हो तो आगे बढ़ जाऊं, नहीं तो मेरा एक मशहूर जुमला आप लोग सोशल मीडिया पे पहले चला देते हैं, आदमी पे दूसरे को सुनाने लायक नहीं रहता, फौरन लोग कह देते हैं मौलाना रिपीट कर रहे हैं। अब ये जुमला मैंने कराची में किसी मकाम पे पढ़ा था और पूरी दुनिया में जहां जाता हूं हर आदमी मुझसे कहता भी ये दोबारा पढ़ दें। देखिए रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम में बड़ा फर्क है। सारे सहाबा, हमारे भाइयों का ये अकीदा है कि सारे सहाबा है रज़ी अल्लाह अन्हुम, सारी अज़वाज है रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, तवज्जो। और हमारा अकीदा ये है अहले बैत है अलैहिमुस्सलाम, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत में बड़ा वाज़े सा फर्क है। जो रज़ी अल्लाह अन्हुम है ना, वो इंतजार करते रहते हैं आयत आए तो हम अमल करें, नहीं सारा मजमा नहीं, वो इंतजार करते थे आयतें आए हम अमल करें। आयत आई अकीमुस्सलात, उन्होंने नमाज पढ़ी। आयत आई व आतुज़ ज़कात, उन्होंने ज़कात दी। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों रोजे फर्ज कर दिए गए, उन्होंने रोजे रखे। आयत आई हिजरत करो, उन्होंने हिजरत की। आयत आई जिहाद पे जाओ, वो जिहाद पे गए, लेकिन आयत नहीं है कि भाग जाना। चल पता नहीं, तवज्जो, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। मैं तो मजलिस पढ़ रहा हूं यहां, मैं बहुत मोहतात अंदाज से आयतें आती रही, वो अमल करते रहे। सहाबा इंतजार में रहते थे आयत आए तो हम अमल करें। आयत आई सदका दो, उन्होंने सदका दिया। आयतें आती रही, सहाबा अमल करते रहे। जो आयतों के इंतजार में रहे वो है रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अलैहिमुस्सलाम वो हैं जिनके इंतजार में आयतें रहती थी। ये बिस्तरे रिसालत पे सोए तो हम जाए, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये राह खुदा में रोटियां दे तो हम जाए, ये रुकू में अंगूठी दे तो हम जाए, ये खैबर का दर उठाए। हैदर 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 हैदर।
तवज्जो फरमा रहे थे जाने के बाद अहले बैत हैं अलैहिमुस्सलाम, आयतें इंतजार में रहती हैं, ये अमल करें तो हम नाजिल हों। अज़ान के नामी बस भाई तफसील का वक्त नहीं है, तो अब ये आयतें कितनी खूबसूरत आयतें हैं, उनमें से एक पूरा सूरा हल अता। यहाँ पे बहुत से अफराद, मुझे बच्चे मिलते हैं आजकल, कहते हैं मैं कुरान याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों का शौक होता है, कोई तशवीक करेगा, प्यार करेगा, मैं भी कोशिश करता हूँ दुआ दे दूँ। तो अब जितने भी कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, उन सबसे कहें पूरे कुरान में देखेंगे ना, अल्लाह ने जगह जगह कहा कि जन्नत में सबको सोने के और रेशम के लिबास मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, क़वारीर मिन फ़िद्दा ज़हबिन व फ़िद्दा, कुरान में ज़हब सोना, फिद्दा चांदी, दोनों लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिए हैं। फिज़्ज़ा आप लोग आमतौर से ज़्वाद को फिद्दा अरबी में कहते हैं, फिद्दा यानी चांदी, ज़हब सोना। पूरे कुरान में अल्लाह ने जगह जगह बताया सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, रेशम के लिबास। लेकिन जब सूरह हल अता आया ना, तो इसमें 3 मर्तबा अल्लाह ने कहा चांदी के बर्तन, लेकिन कहीं नहीं कहा सोने के बर्तन। कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग मुझे बड़ी हैरत से देख रहे हैं। सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ, क्योंकि आले मोहम्मद की शान में आ रहा था, तो अल्लाह ने सोने का जिक्र नहीं किया। छठे इमाम कहते हैं क्योंकि हमारी दादी की एक कनीज है, नाम था फिज़्ज़ा, फिज़्ज़ा के माने चांदी के, और दुनिया में सोना चांदी से बेहतर होता है, तो अल्लाह ने सूरह हल अता में सोना कहा ही नहीं, ताकि फिज़्ज़ा को ये ना महसूस हो मुझसे भी कोई बेहतर है। तवज्जो फरमा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, इन्हें साथ नहीं लेके आया, लेकिन ये और बात है कि सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। तो जाने गिरामी आपकी मोहब्बतों, आपकी चाहतों की नजर कर रहा हूं, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तब सूरह हल अता 31 आयात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खूबसूरत अंदाज से आले मोहम्मद की अजमत को बयान कर रहा। आपने सुन रखा है, मैं सिर्फ 2 आयात जल्दी जल्दी पढ़ूंगा आपकी खिदमत में, अगर सुनना पसंद फरमाएं। तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब भी जमा होते तो अल्लाह कोई ना कोई कसीदा नाजिल कर देता। कसीदा, ये कुरान जगह जगह इसमें आले मोहम्मद की शान के कसीदे हैं, और कई अफराद इसीलिए फतवे लगाते हैं हम तो हो सकती है नात पढ़ना बिदअत है, उन्हें पता है नात पढ़ेंगे तो कसीदा भी आएगा, और कसीदा आले मोहम्मद ही का आएगा, दुश्मनों का नहीं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहा है, तो ग्रामी पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नजर की, आपकी जबान में कहते हैं उर्दू में मन्नत मानी। कुरान कह रहा है यूफून बिन नज़र, जो नजर करते हैं उसे पूरा करते हैं, नजर को पूरा करते हैं, मन्नत मानते हैं तो मन्नत बढ़ाते हैं। तवज्जो, अब पता चला मन्नतें मानना कुरान में है। ओ मुफ्तियों, फतवे लगाने से पहले पढ़ तो लिया करो, नजर न्याज बिद्दत नहीं, कुरान के ऐन मुताबिक है। मैंने कुरान से यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, वो अपनी नजर को पूरा करते हैं। अगर अल्लाह से कभी वादा कर ले मैंने नजर की है, मेरा काम हुआ मैं रोजे रखूंगा, मेरा काम हुआ मैं अलम पे चादर चढ़ाऊंगा, मैं काम हुआ मैं जरिए मुकद्दस के ऊपर। ऐदाने गिरामी, मन्नतें ऐसी जितना इंसान की हैसियत होती है उतनी नजर मानता है। अल्लाह को नजर मानना बड़ा पसंद है,
क्योंकि नजर सैयदा ने माने थे। तो खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने एक मर्तबा कहा, परवरदिगारा 3 रोजे रखो। और मुसलमानों ने लिखा इमाम हसन हुसैन अलील थे 4 और 3 बरस के। तो जनाब सैयदा जनाब अमीर ने नजर की, बीबी ने जैसे ही रोजे रखे तो इमाम हसन हुसैन ने कहा, अम्मा हम भी रोजे रखेंगे। 4 और 3 बरस के बच्चे गर्मियों के रोजे नहीं रखते, लेकिन हसनैन करीमैन दोनों ने कहा, अम्मा हम भी रोजे रखेंगे। बीबी ने कहा, ठीक है। सहरी जनाब फिजा ने देखा कि दोनों शहजादे रोजे रख रहे हैं, तो जनाब फिजा बहुत ज्यादा जनाब सैयदा से मोहब्बत करते हैं। सियाफाम अफ्रीका की रहने वाली एक बीबी जब सैयदा की कनीज बन जाए तो आले मोहम्मद कभी नहीं कहते ओ कनीज, हमेशा कहते हैं अम्मा फिजा। लाखों सलाम उस बीबी पे जिन्हें आले मोहम्मद ने इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया। सुनना चाहेंगे ना? कैफियत बदल गई है मेरी, सुन लीजिएगा। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। बस नजर की जो मुफस्सरीन ने लिखा, जैसे रोजे रखे, इफ्तार का वक्त आया, जैसे ही इफ्तार पे बैठे तो एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक हो। आवाज देने वाले ने आवाज दी, मैं यतीम हूं, मैं मिस्कीन हूं। पहले ने आदमी ने कहा, मैं मिस्कीन हूं। जनाबे अमीर फौरन उठे, का परवरदिगारा मैं खाना नहीं खाऊंगा जबकि मिस्कीन मेरे दर पे है। मौला ने रोटी जब उठाई, जनाब सैयदा ने कहा, आबल हसन मेरी भी रोटी मिस्कीन को दे दीजिएगा। जैसे ही रोटी दी, मौला हसन ने आवाज दी, बाबा मेरी भी रोटी दे दीजिए। इमाम हुसैन ने आवाज दी, बाबा मेरी रोटी भी दे दीजिए, मैं भी आज फाका कर लूंगा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा। जनाब फिजा ने देखा इतनी भूख और गर्मी के बावजूद इतने छोटे छोटे शहजादे अपनी रोटियां रहे खुदा में दे रहे हैं। जनाब फिजा ने कहा, मौला मेरी रोटी इस लायक तो नहीं कि आपकी रोटियों के साथ जाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जनाब फिजा ने कहा, मौला अमीर मेरी भी रोटी अगर दे दीजिए। एक मर्तबा मिस्कीन के पास आए, और भी मिस्कीन उसके साथ होंगे, या अपने घर ले जाना चाहता होगा। मौला ने कहा, हमारी तरफ से अगले दिन फिर रोजा है। इफ्तार का वक्त आया, आने वाले ने दस्तक दी, कहा मैं यतीम हूं। ऐन इफ्तार के वक्त कहा, आया आले मोहम्मद मैं यतीम हूं, आपके दर पे आया। मौला अमीर जैसे ही उठे, जनाब सैयदा ने कहा, अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। मौला हसन ने कहा, बाबा जान मेरी रोटी। इमाम हुसैन जनाब फिजा ने, बस भाई तफसील में नहीं जा रहा। तीसरा दिन था, अब दोनों शहजादों के बाजू कांप रहे थे। जैसे ही जनाबे अमीर ने आवाज सुनी ना, मैं असीर हूं। मदीने में कोई मुसलमान असीर नहीं था। असीर कैदी जितने थे जंगी कैदी थे, और असीरों को क्या किया जाता था, जंजीर बांधी जाती थी वजन के साथ ताकि भाग के जान न सके। तो वो गलियों में रहते थे, लोगों से खाना मांग लेते थे। आने वाले ने कहा, मिस्कीन है, कुरान है असीर, मैं असीर हूं, यानी मुसलमान नहीं। आले मोहम्मद की अजमत इतनी है कि अगर दर पे आने वाला इंसान असीर हो, काफिर हो, फाका कर लेते हैं, इफ्तार नहीं करते, उसे खाना अता कर देते हैं। मौला अमीर जैसे ही उठे, जनाब सैयदा ने उन हाथों से कहा, या अबल हसन मेरी रोटी भी दे दीजिएगा। इमाम हुसैन ने कांपते हुए हाथों से कहा, बाबा जान मैं भी नहीं इफ्तार करूंगा। मौला अमीर ने अपने दोनों बेटों को देखा, आंसू बहने लगे। मौला अमीर से फाका किसी यतीम का बर्दाश्त नहीं होता था, और अगर अपने बच्चे फाके से हों, कहा बेटो आप खा लेकर, नहीं बाबा जान। इमाम हुसैन ने और वहां जनाब फिजा ने देखा कि नहीं, आज भी मैं भी रोटी दे दूंगी। हर रोज रसूल खुदा तशरीफ लाते थे, 2 दिन से आए नहीं थे। एक मर्तबा सूरह नाजिल हुआ, पढ़ूं पूरा मजमून मुकम्मल करूं। एक मर्तबा सूरह नाजिल हुआ, कहा मेरे हबीब 3 दिन से आपकी बेटी फाके से है। फखरुद्दीन राजी कहते हैं, जैसे चूजे होते हैं ना मुर्गी के, तो ज्यादा सर्दी हो तो उनके पर कांपने लगते हैं, भूख की शिद्दत हो तो पर कांपने लगते हैं। फखरुद्दीन राजी कहता है, इमाम हसन हुसैन के बाजू ऐसे कांप रहे थे जैसे चूजों के बाजू कांपते। पैगंबर ने देखा, कहा परवरदिगारा मेरी जिंदगी में मेरी आले से फाकों से। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब दोनों अपने नवासों से पूछे, जो कहेंगे इस वक्त नाजिल होगा, जो कहेंगे मैं नाजिल करूंगा। तो जनाबे सरवर कायनात ने कांधों पे बिठाया, चूमा, प्यार किया, लबों को चूम रहे हैं, गला चूम रहे हैं। मेरे शहजादों आप जो मांगेंगे जन्नत से आएगा इस वक्त।
एक मर्तबा कहा, नाना खाने में मुझे ये पसंद है। जनाब जिब्राईल रिज़वान जन्नत सब नाजिल होने लगे। कहा लिबास क्या चाहिए? इमाम हसन ने कहा अगर नाना हरा लिबास आ जाता। फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, लिबास लिए खड़े। सैयदा कलाल अगर मेरे हाथ से लिबास पहन ले। जनाब सैयदुल शुहदा ने पूछा, जनाब सैयदुल शुहदा से पूछा रसूल खुदा ने, मेरे लख्ते जिगर आपको कहा अगर नाना सुर्ख लिबास आ जाता। कहा मेरे शहजादों कोई सवारी चाहिए? एक ने कहा, इमाम हसन ने कहा नाना अगर जन्नत की ऊंटनी आती। आज भी जब जाएंगे ना वो पत्थर मौजूद है जिसपे उस ऊंटनी के कदम थे, निशान बने। इमाम हुसैन ने कहा नाना अगर जन्नत से घोड़ा आ जाता। जनाब सरवर कायनात ने कहा सब कुछ नाजिल होगा। सूरा अल्लाह ने सूरत नाजिल कर दी, इतनी चीजें नाजिल हुई। तमाम उलमा कहते हैं वक्त नहीं है। मेरी अजीब और गरीब एक कैफियत हो गई है इस वक्त कि मैं यकीन माने कि पूरे मसाइब सोच रहा हूँ, लग रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तबीयत अजीब गरीब हो रही है। मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ मुझे लगता है जैसे जनाब इमाम हुसैन हुसैन का मेरे सामने चल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी एक जुमले पेश करूंगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानो व तआला आगे बढ़ के कहता है काना सायुहुम मशकूरा, ये वो हैं जिनकी कोशिशों का अल्लाह शुक्र अदा करता। सायम मशकूरा की मंजिल किसी की नहीं है सिवाय अहले बैत के। अज़ीज़ान गिरामी जब इन्होंने फाके किए ना तो अल्लाह ने कहा इनका फाका मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरे हबीब अपने हाथ से हसनैन को खाना खिलाइएगा। रसूल खुदा के आंसू बहते जाते थे हाथों से दोनों शहजादों को। जनाब सैयदा कहती बाबा सहमत ना करें मैं खिला दूंगी, मेरी लख्ते जिगर मुझे खिला लेने दें। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह जरा करबला में आके देखे। हुसैन की एक छोटी सी बेटी बार बार आवाज दे रही है अल अताश। अब मुझसे फजाइल पढ़े नहीं जा रहा है। मैं बहुत सोच के आया था। मैंने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह पढ़ा ही नहीं आपके सामने। जो फजाइल तैयारी की थी वो नहीं पढ़ सका। लेकिन अब अगर मैं मसाइब ना पढ़ूं तो मेरी कैफियत फजाइल की है ही नहीं। चलेंगे मेरे साथ। सैयदा को बड़ी मोहब्बत थी इमाम हसन हुसैन से। रसूल खुदा का जब आखिरी वक्त था ना, जब जहर दे दिया गया, जब जहर दिया गया तो पैगंबर बार बार बेहोश हो जाते, होश में आते। देखेंगे मेरी तरफ, जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त था ना तो इमाम हसन हुसैन एक दाईं तरफ से आए एक बाईं तरफ से, रसूल खुदा से लिपट कर। जनाब सैयदा को रसूल खुदा से बड़ी मोहब्बत थी। आवाज दी, ऐ मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा के सीने में दर्द है। मलूनों ने जहर दिया था ना, आप जानते हैं जहर जब दे दें तो जिगर घुलने लगता है, और किसी को जहर दिया जिगर के टुकड़े बाहर आ गए। अजाने के नामी जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे हसन हुसैन, मेरे बाबा को जहर दे दिया गया, सीने से उतरा। जैसे ही रसूल इस्लाम ने ये जुमले सुने ना तो एक मर्तबा रो के अपनी बेटी को देखा और कहा बेटी मेरे दोनों नवासों को मेरे सीने पे रहने दो। जब इनके सीने मेरे सीने से लगते हैं ना मुझे सुकून महसूस होता है। हसनैन मेरा मरहम है। बड़े अजीब और गरीब जुमले हैं ना। बार बार सीने से लगाते, प्यार करते, कभी किसी की पेशानी चूमते, किसी के लबों को चूमते। मेरा दिल कहता है बार बार पैगंबर को ख्याल आता होगा इसका जिगर बाहर आ जाएगा, उसकी रगें काट दी जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम नहीं मेरा बच्चा, मैं देख रहा हूं मेरे मैंने तो अभी शुरू किए मसाइल, अभी तो 5 मिनट मैंने पढ़ा है, मैं तो आधा घंटा मसाइल पढ़ता हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर बर्दाश्त ना करें। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, शबे शहादत है खातून जन्नत की, मैं तो शहादत पढ़ने वाला था जनाबे सैयदा की। बस भाई जुमलों को सुनेंगे। तो जनाबे सरवरे कायनात ने देखा कि जनाबे सैयदा मेरे नवासों को हटाने का नहीं, सैयदा मेरी लख्ते जिगर, मेरे जिगर की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, मेरे इन दोनों नवासों को मेरे पास रहने दे। फिर पैगंबर ने एक मर्तबा सर उठाया, सैयदा बतूल अजरा बेटी आप बार बार दरवाजे पे क्यों जा रहे हैं? कहा बाबा कोई अरब है
बार बार आपका पूछता है। आप जानते हैं ना सैयदा चेहरे नहीं देखते हैं। तो बीबी ने देखा अरब लिबास पहन रखा है, मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। कहा बाबा कोई अरब है, कहता है मुझे रसूल खुदा से मिलना है। मैंने कहा चले जाओ, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। जनाब रसूल खुदा ने कहा सैयदा ये मलकुल मौत है, ये किसी दरवाजे पे इजाजत नहीं मांगता, अंबिया की बारगाह में भी एक लहजे में आ जाता है। ये क्यों जनाब मलकुल मौत दरवाजे पे रुक गए? क्यों? सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, ये सैयदा का दरवाजा है। यहां मलकुल मौत फरिश्ते भी आए तो इजाजत मांगे, जिब्राइलो, मेकाइलो, इज़राइलो, इसराफील भी आए तो इजाजत मांगे। सैयदा रिजवान जन्नत कहे सैयदा आपकी इजाजत है मैं घर में आ जाऊं। फरिश्तों के एहसासात जज्बात नहीं होते, वो पाक मखलूक है, वो भी इजाजत मांग के आए। सैयदा का घर है, ये दर सैयदा का दरवाजा है, फरिश्ते भी रुक जाएं। पैगंबर क्यों बता रहे हैं उम्मत को, ये मलकुल मौत है, सैयदा की इजाजत मांग के आ रहा। ओ मुसलमानों, इस दरवाजे पे आग ना लाना। ओ मुसलमानों आग ना लाना, ये बतूल का दर है। अजरकुम अल्लाह, पढ़ूं सारे मसाए, बर्दाश्त करेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा खातून ने जन्नत के दरवाजे पे जनाब रसूल खुदा के लिए मलकुल मौत भी इजाजत मांगी। जनाब सरवरे कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। जब जा रहे थे तो प्यार करके कह रहे थे या अली मेरी बेटी और मेरे नवासों का ख्याल रखना। मेरा सवाल है आपसे, क्या वाकई ये रसूल खुदा की वसीयत मौला अली को थी? नहीं, वसीला मौला अली थे, वसीयत उम्मत को थी। ओ मेरी उम्मत, मेरी बेटी को ना रुलाना, वो दरख्त ना काटना जिसके साए में सैयदा बैठ के रोए, मेरे नवासों को ना रुलाना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई चलिएगा मेरे साथ। शब शहादत है, जनाब सैयदा के आखिरी दिन है। जब आखिरी दिन था ना तो जनाब सैयदा ने बुलाया अस्मा, उम्मे ऐमान, फिजा, आज मेरा आखिरी दिन है। ये जुमला सुनना था, जनाब अस्मा बुलंद आवाज से रोने लगी। कहा बीबी इतनी जवानी में भी कोई दुनिया से जाता है? बीबी अभी 19 बरस की भी नहीं हुई है। जनाब सैयदा ने कहा ये जुमले अगर मोतबर किताबों में, मुसनद किताबों में ना होते, खुदा की कसम मैं मेंबर से ना पढ़ता। कभी शक न कीजिएगा, मैंने बड़ी तहकीक की है, बड़े बड़े जय्यद उलमा महाराजों से इसकी सनद को दरियाफ्त किया ये मुस्तनद है या नहीं। बीबी ने हाथ उठाए और एक मर्तबा का इलाही अज्जिल वफाती, परवरदिगारा मेरी मौत भेज दे, मैं जीना नहीं चाहती। ना जाने किन्हों ने इतना सताया, बीबी अब जीना नहीं चाहती। कहा मैं जब भी देखती हूं मदीने वालों मेरे जनाजे में ना आना। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जुमले पेश करा, जैसे कहा ना अस्मा आज मेरा आखिरी दिन, मैं अपने बाबा के पास जा रहा हूं, आज मेरी शहादत का दिन है। बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। एक मर्तबा मेरे तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, 5 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने फरमाया फिजा मेरे बेटों को पहले खाना खिला देना, बाद में बताना मेरी शहादत हो गए। जनाब फिजा के आंसू बह रहे थे। नहीं मेरा बच्चा है, रोके इनको, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने कहा फिजा मेरे बच्चों को खाना खिला देना। कभी भी और कोई वसीयत? का फिजा मैंने अबल हसन से कह दिया है, मैंने अली को वसीयत कर दी है, अली खुद मुझे गुस्ल देंगे, मेरा कफन अली करेंगे। फिजा जब अली गुस्ल देना जरा पानी देती रहना। जनाब फिजा रो रही हैं। और भी कोई वसीयत? फिजा मेरी जैनब को बहुत प्यार करना, फिजा जैनब को मेरी बहुत आदत है। फिजा जब दरबार जाए जैनब साथ जाना, फिजा जब कोई ताजियाना उठाए। अजरकुम अल्लाह। भैया मैं देख रहा हूं मर्दा, रोके इनको बस। भाई अब
बहुत से लोग चेहरे का पुरसा देने मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ूं मसाइब या ना पढ़ूं। बस एक मर्तबा जनाब फिजा को वसीयत, मैंने सारा छोड़ दिया मसाइब, अब नहीं पढ़ूंगा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने जब कह दिया ना का फिजा मेरे हुजरे का दरवाजा बंद कर दीजिए, सब बीबियां हुजरे से बाहर चले गए। फिजा जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझ जाना मैं हूं, जैसे तस्बीह की आवाज बंद हो समझ जाना मेरे बाबा आ गए हैं। जैसी तस्बीह की आवाज बंद हुई मातम शुरू हो गया। इतने में हसनैन करीमैन घर में आ गए। सारी बीवियों ने आंसुओं को साफ किया। क्यों? बीबी की वसीयत थी पहले खाना खिला देना, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चलिए। जनाब फिजा ने आंसुओं को साफ किया और एक मर्तबा का शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन ने एक मर्तबा कहा अम्मा फिजा आपने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया हो? हम माँ के बगैर खाना नहीं खाते। एक मर्तबा जनाब फिजा ने रो के कहा आपकी माँ की वसीयत थी पहले खाना खिला देना। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने माँ के हुजरे का दरवाजा खोला। बस भाई आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, अगर देख सके अब जरूर देखिएगा। जैसे ही दरवाजा खोला दोनों शहजादों ने अम्मामे उतारे, घुटने पे मारे और दोनों मां से लिपट गए। जैसे ही दोनों लिपटे तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा भैया बाबा को खबर कर दें। पढ़ूं सारा मसाइल, बाबा को खबर कर दें। नंगे पांव नंगे सर दोनों मस्जिद नबवी में आए जहां मौला अली थे। मौला अली बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, चारों तरफ सहाबा थे। एक मर्तबा दाईं तरफ से मौला हसन आए, बाईं तरफ से मौला हुसैन। दोनों शहजादे बाबा से लिपट गए। मौला से जैसे लिपटे ना मौला से कुछ कान में कहा। मौला अली ने बुलंद आवाज से कहा या ज़हरा। बस मौला का दीवार को थामना था। जैसे सहारा लिया ना जनाब सलमान आगे बढ़े, सहाबा आगे बढ़ने लगे। कहा या अली क्या बात है, आप कभी सहारा लेके खड़े नहीं हुए। मेरी तरफ देखिएगा। या अली आपने खैबर का दर उखाड़ा, आपने कभी कमर को नहीं संभाला। आप खंदक में लड़े, कभी कमर का सहारा नहीं, कमर पे हाथ नहीं रखे। या अली क्या बात है? कि आज मेरी कमर टूट गई। मौला क्या बात है? कि बिन्ते रिसालत चले गए। सारे रोने लगे। जनाबे सलमान, अबू जर, मिक़दाद, हाय फातिमा। मदीने में कोहराम पर बता। मौला ने कहा रुक जाओ, कोई मेरे घर ना आए। कहा मौला हम जनाजे में आना चाहते हैं। कहा नहीं, फातिमा ने वसीयत की थी। जनाजा पर्दे में उठे, अगर मुझे बुलाना होगा मैं खुद खबर कर दूंगा, खबरदार कोई मेरे घर ना आए। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैंने बहुत जब्त किया लेकिन मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूं। मौला ने जब गुस्ल कफन दे दिया ना, बस मैं अब कल इंशाअल्लाह नशब आके मैं पढ़ूंगा पूरी शहादत। रात का वक्त था, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। आज किसी मोमिना का इंतकाल हो जाए ना, ये कौन होती है मोमिना? कनीज़े सैयदा। जनाबे सैयदा की कनीजों के जनाजे में कितने लोग आ जाते हैं। और कायनात की मलिका का जनाजा उठा रात की तारीकी में, ताबूत उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। मैं कैसे पेश करूं? मौला अली है, मौला हसन है, मौला हुसैन है, हजरत अकील है, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार हैं, जनाबे सलमा, बड़े करीबी अफराद। बस जब जनाजा उठा ना, मौला अमीर ने कांधा दे रखा था, कुछ ही दूर जनाजा गया। मौला ने एक मर्तबा जनाजा रोका, आवाज दी, कहा बेटा हसन मुझे जनाजे के पीछे आहट महसूस हो रही। मौला हसन ने कहा बाबा जैनब आ रही है। मौला अली ने फरमाया बेटा जैनब को घर छोड़ के आओ, ये जनाजा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक जैनब घर न चले जाए। कहा बाबा जैनब ने चादर ले रखी है। कहा नहीं बेटा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मदीने के बाजारों में जैनब बाहर आया। एक मर्तबा मौला हसन ने कहा बीबी घर चलिए,
बाबा का हुक्म है, जनाब ज़ैनब वापस आने लगी। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, माँ का जनाजा, बाप का साया, भाइयों का साथ, सर पे बुर्का, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला कल कूफे का बाजार, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, अली की बेटियां बगैर चादरों के जब मजमाए आम में आएंगी, लोग कहेंगे बागियों की बहनें आ गईं। मौला कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। जब बीबियां आई आवाज दी, बाबा जरा आके देखें। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।